प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। नमस्कार। आज 26 जनवरी के पावन दिन इस राष्ट्रीय पर्व पर मातृभूमि को नमन करते हुए मैं जसदेव सिंह दूरदर्शन की ओर से, अपनी ओर से और अपने साथियों नीति रविंद्रन, ब्रिगेडियर चित्रंजन सामंत और राजीव मेहरोत्रा की ओर से आप सब देशवासियों का अभिनंदन करता हूं। हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। राजपथ, जहां से इस समय हम आपसे मुखातिब हैं, जीवंत हो उठा है। इस समय कुछ ही देर में गणतंत्र दिवस परेड आरंभ होगी। यहाँ राष्ट्रपति श्री रामास्वामी वेंकटरामन सलामी लेंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति पर देशवासियों की ओर से पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। Greetings from India Gate, a prop of a monument on two stout, chiseled legs with the names of heroes who died far from home. This triumphal arch was raised in memory of the 90,000 soldiers of the Indian Army who died here during the First World War. The Prime Minister arrives down this hallowed strip of tarmac as we commemorate the 38th anniversary of the Republic of India, another landmark on the sands of time. The Prime Minister is greeted by the Defense Secretary S.K. Bhatnagar, Chief of Air Staff F. Chief Marshal De La Fontaine, Chief of Naval Staff Admiral Nadkarni, Chief of Army Staff Sundarji. Before the pageantry and the splendor, a moment of solemnity as we pay homage to those that have made it possible for us to live in peace and tranquility. As the Prime Minister will lay the wreath, the Guard will give the Salami Shastra and the Shok Shastra.
guard gives Salami Shastra. And the buglers sound the rouse. And as the Guard Commander orders Bazu Shastra, the Prime Minister moves away to drive to the saluting base up on Rajpath. All eyes are focused beyond this car. The Prime Minister now enters onto Rashtrapati Bhavan, behind it in the distance. And Rajpath, as it marches on from the base of India Gate, through wide green lawns on a clear, fresh black tarmac, with traffic lines spotlessly white for some 2 kilometers, its long line of caryopsis and a string of national tricolors on gleaming white flagpoles. With the images of gaiety, of confidence in the morrow, here in Rajpath, there are also the images and memories of solemnity, of sacrifice, of the last journeys of at least 4 men and a woman, as they wound their way through the heart of Delhi in our hearts. Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri, and Indira Gandhi. The names of Gandhi and Nehru are interwoven with the very founding of the Republic. Here, the hallowed tarmac of history, we recall our tryst with destiny. Freedom was obtained for India by its masses, who faced untold repression under the British while struggling to free the country from the foreign yoke. But howsoever much the violence perpetrated on them, the Indian masses remained non-violent and bore their wounds and injuries stoically, a price to be paid for freedom. The All India Congress Committee met to ratify the Working Committee's decision that the party should join the proposed Constituent Assembly for framing a constitution for a free, united and democratic India. The father of the nation, Mahatma Gandhi, joined the meeting to guide the deliberations, and the Congress President appealed to the people to remain united and strong to prepare for the problems that would arise after ending the foreign rule. Persuading the Congress to join the Constituent Assembly, Mahatma Gandhi asserted that it should be a challenge. Painting a picture of free India, Mahatma Gandhi wrote that each village will be a republic with an all-powerful panchayat. He said life in non-violent India will not be a pyramid, but an oceanic circle where the individual will willingly perish for the village. He said every religion in free India will have an equal place. The spirit of the country is aptly described in the patriotic poems of Subramanya Bharati, who said, "India has 30 crore faces, but her heart is one. She speaks 18 languages, yet
her mind is one. After a prolonged struggle, India became independent on the night of August 14th-15th, 1947. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. After nearly 3 years of deliberations, the Constitution was adopted, and India became a republic on 26th of January 1950. We, the people of India, have solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, and equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give ourselves this Constitution. Our Constitution is an expression of the democratic urge. The Constitution embodies fundamental rights and directive principles of policy which assure many types of freedom. Our state is a secular state which gives equal opportunity to every group, every part of the country, every state, province, and area. We're back once again here at Rajpath and the saluting base, the focal point of the parade. Today, a new generation of Indians is holding aloft the flag of free India. The Prime Minister arrived here a short while ago from India Gate, and we now await the arrival of the President. The Prime Minister goes up to greet the Vice President. The Prime Minister greets the Defence Minister, Mr. K.C. Pant, the Minister of State for Defence, Mr. Shivrat Patel, and the 3 service chiefs, and the Defence Secretary, Mr. Bhatnagar. The ceremony at the Amar Jawan Jyoti was a ceremony with the Prime Minister, in the words of Jawaharlal Nehru, as the first servant of the Indian people, paying homage to the valiant officers and men who defend our vast frontiers. Here at the saluting base, it is the President who will preside, and his arrival in a formal ceremonial coach, formal ceremonial procession down Rajpath will mark the start of the ceremonies.
Our national flag that you see here belongs to everyone. And this will be embodied in the closing finale that will mark the closing of the parade this morning. The spirit of freedom, representing the continuity of our experience as a nation, the wisdom of our elders, the skills and resources of today's generation, and the enthusiasm and dreams of young people who will be the leaders of tomorrow. The 40 flag bearers at the finale, one for each year of independence, will constitute the spirit of freedom, recreating live on Rajpath the television spectacular Spread the Light of Freedom. Here there is an air of expectancy, of excitement, and it feels like the eye of an expectant hurricane of color, pageantry and splendor. And as the sun overcomes the early morning mist, all eyes focus on Rashtrapati Bhavan in the distance. Despite the enormous reach of Doordarshan and the vivid detail that captures, including a special portable RF camera that you now see on the corner of your screens, these images haven't kept away vast throngs of audiences and people on either side of Rajpath. This is Venkataraman, wife of the President of India, and this is Elena Jayewardene. President Julius Jayewardene will be the chief guest at the festivities here this morning. Doordarshan is bringing you these sounds and images using over a dozen microphones and 8 cameras, including one on a crane that you see here. Sitting here on Rajpath, we'll look at this shot from the crane and at these familiar images on our monitor sets that preface the spectacle to follow. There is inevitably an overwhelming sense of history. These are the images that our cameras have been groping for. The early morning mist, the crowds, the morning coats, and bemedaled military men, the familiar faces of dignitaries, the galloping bodyguards of the presidential palace. अपने अंगरक्षकों की अगुवाई में राष्ट्रपति श्री रामास्वामी वेंकटरामन सलामी मंच के निकट पधारे। ये अंगरक्षक जो कि भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है, 214 वर्ष पुराना इतिहास है इस रेजिमेंट के पीछे। 1773 में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा वाराणसी में इस रेजिमेंट का गठन किया गया था। उसके बाद 1850 में इसका नाम बदला वॉयसरायज बॉडीगार्ड्स, 1946 में गवर्नर जनरल बॉडीगार्ड्स, और जब भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को, तो ये कहलाए प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स या राष्ट्रपति अंगरक्षक। राष्ट्रपति जी की अगवानी के लिए इस समय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी, राष्ट्रपति जी के साथ उनके दाईं ओर हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री जयवर्धने। हमारे देश में आए हुए मान्य अतिथि राष्ट्रपति जी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जी का परिचय कराया जा रहा है। तीनों सेनाध्यक्ष और रक्षा सचिव के साथ उनका अभिवादन करते हैं अपनी गणतंत्र दिवस की 38वीं सालगिरह के मौके पर, और राष्ट्रपति जी उनके साथ में इस मौके पर दोनों देशों के राष्ट्रपति
एक कदम मिला करके कदम ब कदम सलामी मंच की ओर ऊपर बढ़ रहे हैं। दोनों देश जैसे प्रगति राष्ट्रपति अंगरक्षक अपने कमांडिंग ऑफिसर के नेतृत्व में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मंजीत सिंह संधू के नेतृत्व में पंक्तिबद्ध खड़े हैं। दूसरी ओर कमांडिंग ऑफिसर के हैं राष्ट्रपति अंगरक्षक दल के एडजुटेंट मेजर राकेश पासी। इस तरह से आज का मुख्य समारोह शुरू हो रहा है। कुछ क्षणों में राष्ट्रपति जी अपना जैसे ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, 21 तोपों की सलामी दागी जाएगी और राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई जाएगी। 26 जनवरी का पावन राष्ट्रीय पर्व। हमारा भगवा रंग जो वीरता का प्रतीक है, सफेद रंग जो शांति का प्रतीक है और हरा रंग जो हमारी प्रगति का प्रतीक है। और उस राष्ट्र ध्वज के बीच में बना ये गोलचक्र गर्जना करती ये तोपें भारतीय गणतंत्र का जय घोष कर रही हैं। और राजपथ पर फहरा रहा है हमारी आजादी का प्रतीक, हमारे राष्ट्र का प्रतीक, हमारा ये तिरंगा ध्वज, साहस, बलिदान और समृद्धि का प्रतीक। और अदम्य साहस के लिए परम वीर चक्र नायब सूबेदार बाना सिंह, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री। नायब सूबेदार बाना सिंह अपनी इच्छा से उस विशेष कार्य दल में शामिल हुए जिसे 21,000 फुट की ऊंचाई वाले सियाचिन हिमाचल क्षेत्र से विरोधी घुसपैठियों को निकाल बाहर करने का काम पिछले वर्ष जून में सौंपा गया था। वो स्थान हिम श्रृंखला का एक सचमुच अभेद्य दुर्ग था, जिसके दोनों ओर लगभग 1500 फुट ऊंची बर्फ की दीवार थी। नायब सूबेदार बाना सिंह अपने साथी सिपाहियों को अत्यंत दुर्गम और जोखिम भरे मार्ग से उस ऊंचाई पर ले गए। अपने अदम्य साहस और नेतृत्व से आपने साथी सिपाहियों को प्रेरित किया। वीर नायब सूबेदार और इनके साथी कुहनियों और घुटनों के बल सरकते हुए विरोधियों के समीप पहुंचे। एक खाई से दूसरी खाई में छलांग लगाते हुए, हथगोले फेंकते हुए और संगीन भोंकते हुए आपने उस चौकी से विरोधियों को मार भगाया। नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया। नायब सूबेदार बाना सिंह। नायब सूबेदार बाना सिंह जान जोखिम में डाल इस बहादुर सैनिक ने अपनी सेना की कीर्ति पताका को सफलता के शिखर पर मेजर फहराया। रामास्वामी परमेश्वरन, महार रेजिमेंट, मरणोपरांत। मातृभूमि को इन सपूतों पर नाज है।
मेजर रामास्वामी परमेश्वरन पिछले वर्ष 25 नवंबर देर रात श्रीलंका में एक तलाशी अभियान से लौट रहे थे जब उनके सैन्य दल पर कुछ आतंकवादियों ने घात लगाकर आक्रमण किया। शांत मन और सुध बुद्ध से उन्होंने आतंकवादियों को पीछे से घेरकर जब निर्भीक रूप से धावा बोला तो वे स्तब्ध रह गए। उस मुठभेड़ में एक आतंकवादी ने मेजर परमेश्वरन के सीने में गोली मारी। फिर भी अपने घाव की चिंता न करते हुए निर्भीक मेजर ने उस आतंकवादी की राइफल छीनकर उसे गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल अवस्था में अपनी अंतिम सांस तक मेजर परमेश्वरन सामरिक आदेश देते रहे और अपने साथी सिपाहियों को प्रेरित करते रहे। उन्होंने घात लगाकर हमला करने वालों का सफाया कर दिया। 5 आतंकवादी मारे गए और उनसे 3 राइफलें तथा 2 रॉकेट लॉन्चर बरामद किए गए। मेजर परमेश्वरन ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर परम उत्कृष्ट वीरता का परिचय दिया। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन की पत्नी श्रीमती उमा परमेश्वरन। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन कर्तव्य की बलिवेदी पर जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, समाप्त करने की अनुमति मांगता हूं। मृत्यु ऐसे ही वीरों से हारी है। ऐसे वीर मरते नहीं, अपने देश के गौरव पुरुष बन जाते हैं। अभी राष्ट्रपति महामहिम श्री आर वेंकटरामन ने अलंकरण ये इंडिया के लिए प्रदर्शित किया और अब आज का ये अंतिम साल का गणतंत्र दिवस समारोह शुरू हो रहा है। लोग उत्सुकता से कपड़ों का इंतजार कर रहे हैं। राजपथ पर वसंत का चमकीलापन सारे वातावरण को और भी भव्यता प्रदान कर रहा है और ऐसे में आसमान में ये परवास भरते 3 हेलीकॉप्टर फहराते हुए राष्ट्रीय ध्वज और सेना ध्वज राजपथ पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। और इधर अब आरंभ होती है परेड। As the rose petals flutter down along Rajpath, its quiet dignity turns ceremonial. The parade marches towards India Gate, color, pageantry, military pride, captured for the entire nation. Heading the parade, the foremost jeep is the parade commander, Major General Vinod Padvar, VSM, GOC Delhi area. Commissioned in the 5th Gurkha Rifles in 1954, he is a proud recipient of the Swords of Honor and Gold Medal from the Indian Military Academy, Dehradun. He commanded a brigade, later 25 Infantry Division. Presently, General Officer commanding Delhi area. Following the parade commander are the winners of the Paramveer Chakra, Ashok Chakra and Victoria Cross, driven by the personnel of the Corps of Military Police of Delhi area. The Paramveer Chakra holders are Colonel Hoshiar Singh, Lieutenant Colonel D.S. Thapa, Major R.R. Rane. Victoria Cross, Subedar Major Honorary Captain Bandari Ram, Subedar Major Honorary Captain Umrao Singh, Subedar Major and Honorary Captain Agan Singh Rai.
the mounted column, leading the army contingents. Right in front is the contingent of the 61st Cavalry, led by Major K. Ram Singh. He's won various medals in the equestrian field and is a renowned polo player of the cavalry. 61st Cavalry was raised in 1953 as the New Horse Cavalry, changed later in 64 to the 61st Cavalry. It has a long history and accredited with a number of battle honors, bagged 3 gold medals for India in the equestrian events, and produced horsemen of world class. I hand you over to Brigadier Savant. अर्जुन टैंक 39वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र को नया उपहार, देश की सीमा सुरक्षा सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक और नया कदम। महाभारत के महान योद्धा अर्जुन के समान इस टैंक की प्रहार शक्ति और सामरिक गतिशीलता अनुपम है। कमान कर्नल टी.आर. मारवाह, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की गौरवमय उपलब्धि अर्जुन टैंक। आशा है इस दशक के अंत तक ये हमारा मुख्य युद्ध टैंक बन जाएगा। विजयन टैंक का दस्ता, कमान मेजर अजय सक्सेना, चालक दल 64 कैवेलरी। 1965 और 1971 की लड़ाइयों में विरोधी शक्तियों के मंसूबों को पस्त करने वाले हमारे विजयंत टैंक। इस समय राजपथ इन विजयंत टैंक की कुल संख्या 14, हीरे के आकार में, स्वदेशी हैं, मद्रास के पास आवड़ी में निर्मित। खेमकरन, असलुत्तर और बासंतर आदि लड़ाई के मैदान में ध्वस्त पैटर्न टैंक की कतारों को देखकर हर भारतवासी इन विजयंत टैंक पर गर्व करता है। विजयंत की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा और दोबारा ईंधन लिए बिना 300 किलोमीटर तक ये टैंक जा सकते हैं। तोप को ऊपर से नीचे जमीन की तरफ झुकाना सम्मान सूचक है। अभिवादन राष्ट्रपति की। बहुत ही कारगर और प्रभावशाली तोप। दूसरा टैंक का दस्ता T-55 टैंक, चालक दल 45 कैवेलरी, कमान मेजर B.S. केहा। जल और थल पर समान रूप से चलने वाले T-55 टैंक अधिकतम रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तोप 105 मिलीमीटर। ये छन्नियाँ इस बात की द्योतक है कि टैंक कमांडर और टैंक उप कमान के टैंक कौन से हैं। साथ में लगे मशीन गन। उन्नीस 1971 की लड़ाई में पूर्व बंगाल क्षेत्र में इन टैंकों की महत्वपूर्ण और प्रभावशाली भूमिका थी। उसी लड़ाई में 45 कैवेलरी ने एक महावीर चक्र, एक वीर चक्र प्राप्त किया। पुरानी परंपरा के अनुसार जब शस्त्र नीचे जमीन की तरफ झुक जाते हैं तो उनकी मार करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, इसीलिए इसे अभिवादन का रूप माना गया है, सम्मान सूचक।
हवाई सुरक्षा प्रक्षेपास्त्र प्रणाली, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल। कमान मेजर CM उन्नीथन अभिवादन करते हैं। नाम है इसका क्वाड्राट। मिसाइल प्रणाली है, लड़ाई के मैदान में दुश्मन के उड़ते हवाई जहाज को मार गिराती है। 501 AD ग्रुप यानी एयर डिफेंस ग्रुप के अधिकारी और जवान क्वाड्राट की इस प्रक्षेपास्त्र प्रणाली में साथ हैं। मिसाइल नाम है ओसा ओका। मेजर AK नेगी की कमान में ये दस्ता आगे बढ़ रहा है। ये प्रक्षेपास्त्र बहुत ही गतिशील, बहुत ही घातक। रेडार से ये अपने निशाने को देखकर अमोघ मार करता है। हर मौसम में, आनन फानन में इस मिसाइल का उपयोग किया जा सकता है। अमोघ इसलिए क्योंकि मार कभी चूकती नहीं। महाभारत के घटोत्कच की तरह स्वचालित और निश्चित रूप से घातक। टोपेज ABC आर्मर्ड पर्सनल कैरियर। कमान मेजर विजय सिंह। ये कवचित पैदल सेना वाहन है। आजकल की लड़ाई में टैंक और पैदल सेना यानी इन्फेंट्री दोनों का तालमेल बहुत ही ज़रूरी है। टैंक तेज़ गति से शत्रु के पास पहुंचता है और इन्फेंट्री को भी उसी तेज़ गति से इन वाहनों में बैठकर पहुंचना होता है और इसीलिए टोपेज का इस्तेमाल इन्फेंट्री करती है। इस टोपेज में 11 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के सैनिक हैं। पहले ये 18 राजपुताना राइफल्स कहलाती थी। ये टोपेज टैंक की तरह ऊबड़ खाबड़ जमीन पर चल सकते हैं। 105 मिलीमीटर हल्की मैदानी तोप मेजर हरजीत सिंह की कमान में। ये लाइट फील्ड गन है। गणतंत्र दिवस परेड पर आज पहली बार भारत में बनी ये तोप, जो पिछले साल तोप दिखाई गई थी इंडियन फील्ड गन 105 मिलीमीटर, उसी का ये हल्का रूप इस वर्ष है। इसीलिए मैदानी इलाकों के अलावा पहाड़ों पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 17.5 किलोमीटर तक प्रभावशाली प्रहार और तोपची दल 92 फील्ड रेजिमेंट का। और अब सलामी मंच की तरफ 36 मराठा मीडियम रेजिमेंट मेजर अमर हुडा कमान कर रहे हैं 130 मिलीमीटर तोपों के दस्ते का। ये तोपें 28 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। दुश्मन के टैंकों के ठिकानों पर बड़े बड़े क्रॉस ट्रक इन्हें खींच कर ले जाते हैं, इसलिए ये टोट गन कहलाती है या कर्षक तोपें। तोप का आकार और इसका वजन बहुत ही भारी, लेकिन मार करने की क्षमता 28 किलोमीटर की दूरी तक। दुश्मन के टैंकों और दुश्मन के टैंकों पर, तोपों पर अचूक मार करने और धुआंधार गोले बरसाने की इनकी क्षमता है। युद्ध में अपने सैनिकों का मनोबल 130 मिलीमीटर तोप ऊंचा करती है और दुश्मन का दिल दहलाने वाली तोप है। हर एक तोप के लिए एक NCO यानी नॉन कमीशन ऑफिसर और 8 जवानों का तोपची दल। – 130 मिलीमीटर की इन भीषण और हाहाकार मचाने वाली तोपों के साथ जो तोपची दल है वो 36 मराठा मीडियम रेजिमेंट का है।
Captain Arun Kumar Singh of the 210th Rocket Regiment. तोपों का दृश्य सुंदर मनमोहक। कैप्टन अरुण कुमार सिंह 210 रॉकेट रेजिमेंट के 122 मिलीमीटर बहुनौल रॉकेट लॉन्चर, एक एक ट्रक पर 40 रॉकेट इस समय, और रॉकेट लॉन्चर 20 किलोमीटर दूर तक कारगर मार करने वाले हैं। ये अनोखा शस्त्र है। एक जगह से एक साथ एक ही क्षण 40 रॉकेट फायर होते हैं, और जब कई बहुनौल रॉकेट, जैसा अभी आप इस वक्त देख रहे हैं, अपने लॉन्चर से इकट्ठा छूटते हैं तो दुश्मन का नामो निशान मिटा देते हैं। रॉकेट की मार की जगह जमीन हिल जाती है भूडोल की तरह। कैप्टन S.K. राकेश 155 मिलीमीटर फील्ड तोप, उनतालीसवें गणतंत्र दिवस परेड पर आज पहली बार एकदम नई, आधुनिकतम, सबसे प्रभावशाली, अत्यंत विध्वंसक, विस्फोटक और शत्रुनाशक भारी गोलों को 30 किलोमीटर दूरी तक फेंककर मार करने की क्षमता है। तोप के मुंह पर, एकदम मुहाने पर जो आकार है वो 130 मिलीमीटर। इस तोप को 360 डिग्री यानी चौहु ओर घुमाकर किसी भी दिशा में गोले गिरा सकते हैं। बहुत ही गतिशील है। तोपखाने की सर्वोत्तम शस्त्र प्रणाली यूँ तो स्कैनिया गाड़ी से खींच कर ले जाती है, लेकिन कुछ दूरी तक यह तोप अपने आप भी APU यानी ऑक्सिलरी पावर यूनिट से चल सकती है। इसका तोपची दल 79 मीडियम रेजिमेंट, 79 मीडियम रेजिमेंट, रंग खाकी, रेगिस्तानी इलाकों के माहौल से मेल खाता हुआ, ताकि शत्रु के विमान आसानी से पहचान न सके। इस वक्त 155 मिलीमीटर फील्ड गन बिना स्कैनिया गाड़ी के अपने ऑक्सिलरी पावर यूनिट से अपने आप चल रही है। आयुध दल कॉम्बैट टीम, आधुनिकतम प्रयोग सामरिक क्षेत्र में। आजकल लड़ाई के मैदान में विजय इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करती है कि आर्मर यानी बख्तरबंद दस्ते, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और तोपखाना यानी आर्टिलरी के बीच कितना ज़्यादा आपसी तालमेल है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि टैंक और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का मिला जुला कॉम्बैट टीम बनाया जाए। आयुध दल इस समय राजपथ में। इस कॉम्बैट टीम के साथ सबसे पहले टैंक्स, मेजर सुनील शेरगिल 8 कैवेलरी के टैंक हैं T-72, T-72 टैंक्स का पूरा एक स्क्वाड्रन। ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल ICU DMP 8 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के मेजर जागीर सिंह इसकी कमान कर रहे हैं। विहंगम दृश्य में T-72 टैंक दुश्मन के लिए दैत्य, हेलीकॉप्टर 5 चीता और चेतक, सलामी उड़ान भरते हुए इस कॉम्बैट टीम का, इस आयुध दल का अभिन्न अंग हेलीकॉप्टर दस्ते 2 चीता और 3 चेतक
ये हमारी आर्मी एविएशन कोर के हैं और इनका नेतृत्व कर रहे थे ब्रिगेडियर आत्मा सिंह हंसारा। कॉम्बैट टीम हेडक्वार्टर्स के बाद इस समय शिल्का तोपें 140 एडी रेजिमेंट की कमान कैप्टन गिरीश शर्मा की। बहुत ही सुंदर, मनमोहक, प्रभावशाली। T-72 टैंक जिनकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और रात में इनमें इंफ्रारेड रेज लगी हुई हैं जिनसे ये शत्रु को रात में देखकर उन पर कारगर गोले गिरा सकते हैं। और टैंक की ऊंचाई कम होने की वजह से शत्रु इन पर कारगर मार नहीं कर सकता है। इनकी तोप बहुत ही प्रलयकारी है। बहुत ही अच्छा तालमेल, आर्मर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, इंजीनियर। इस समय इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल जिसमें टैंक भेदी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स लगी हुई है। यही नहीं, इनके साथ इंजीनियर रेजिमेंट, क्योंकि जब शत्रु टैंक के आगे बहुत बड़ी बड़ी माइंस या बारूदी सुरंगें बिछा देता है तो उनको हटाने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है टैंक ट्रॉल्स का। बहुत ही इस समय T-72 टैंक ट्रॉल टैंक जो बारूदी सुरंगों को निष्काम कर देते हैं, प्रभावहीन कर देते हैं और हमारे टैंक, हमारी गाड़ियां बिना किसी अवरोध के जा सकती हैं। नदी नाले या अन्य इस तरह की खाइयां, उन पर हम आनन फानन में पुल बना सकते हैं बात की बात में। इस 64 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट की कमान कैप्टन US टोडी कर रहे हैं। आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल भी जो गाड़ियां खराब जाएं, टैंक खराब जाएं, उन्हें वहां से हटा सकते हैं। कमान मेजर रविंदरजीत से। और 130 मिलीमीटर तोप जो स्वतः प्रेरित है 24 मीडियम रेजिमेंट की है। ये विजयन टैंक के शैसी यानी उसी के आकार पर ये तोपें हैं, लेकिन तोपें 130 मिलीमीटर हैं, प्रभावशाली, दूर तक मार करती हैं। यह आधुनिक युद्ध का आयुध दल, कॉम्बैट टीम, आपस में मेलजोल, बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही कारगर, शत्रु को हिला देने वाला, नेस्त नाबूद करने वाला। और अब राजीव। Coming down Rajpath now are the marching contingents. The precision of their movement, its timing, its rhythm, comparable, perhaps better than anywhere in the world. Look at them as they march past in brisk, fluid motions past the Commander-in-Chief. The Bengal Engineering Group, leading the marching contingents of the Indian Army.
62 battle and theatre honours, including 9 Victoria Crosses, commanded by Captain Kamal Kumar Repswal. And on their heels, the Bombay Engineering Group and Rajpath Regimental Centre Band, playing the tune Sons of the Brave. The Brigade of the Guards, a history of over 200 years, 2 Paramveer Chakras, 6 Mahavir Chakras, and 45 Veer Chakras, and 113 other medals. They have the rare distinction of having fought in almost all the theatres of war across the world and have won 84 battle honours. They were commanded by Captain Rakesh Kumar Dixit. The Grenadiers, raised in 1779, as they march past saluting their Commander-in-Chief. 11 battle honours, 4 Victoria Crosses, 39 military cross, 10 OBEs, 2 Paramveer Chakras. Major A.S. Grover commands the contingent. Just gone past the bands of the Sikh Regimental Centre and the 11 Gorkha Rifle Regimental Centre. The Maratha Light Infantry, raised in 1767, 53 battle honours, 7 theatre honours. Captain D.K. Raval commands this contingent. The Sikh Light Infantry, raised in 1857, they have fought valiantly in the nation's defense in each of our theatres of war. The contingent has the pride that almost all its men have had at least one ancestor in the regiment. The contingent commander, Major Rohinton K. Manik, is himself a second-generation member of the regiment. And here are the bands of the Sikh Light and Dogra Regimental Centre. They play the tune Bhopal March. The Dogra Regiment Marching Contingent, raised in 1946. It is legend for its bravery, with 14 military crosses, 44 OBEs, 9 Mahavir Chakras, 32 VCs, and 521 other medals. The contingent is led by Lieutenant Sangar Kumar Jha. और ये हैं असम रेजिमेंट के जवान, 1941 में गठित, अपने आदर्श वाक्य तगड़ा रहो के अनुरूप मार्च करते हुए कमान कैप्टन नंदराज लामा के हाथ में। कर्तव्य परायणता के कितने ही कारनामों से इन योद्धाओं ने अपना इतिहास सजाया है। दाईं ओर देश के सर्वोच्च सेनापति, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति श्री वेंकटरामन को सलामी देते हुए, उत्साह और उमंग से भरपूर संगीत की स्वर लहरियां रचाता ये बैंड है महार रेजिमेंट सेंटर और बिहार रेजिमेंटल सेंटर का। बिहार रेजिमेंट 1941 में स्थापित। इस रेजिमेंट के सूरमाओं ने हाका और कांगो की लड़ाइयों में नाम कमाया। उसके अलावा अन्य युद्धों में भी कई पदक और सम्मान प्राप्त किए। कैप्टन विजय मुखर्जी कमान कर रहे हैं बिहार रेजिमेंट के इस टुकड़े की। सिर पर गुरखा हेड, बगल में खुखरी, ठीक पहचाना आपने। ये हैं गुरखा राइफल्स के सूरमा, जिन्होंने अपने संकल्प और दृढ़ निश्चय से बहादुरी की कितनी ही गाथाएं और कहानियां लिख दी हैं।
इनके कमांडर हैं इस समय कैप्टन A.G. उंडालकर। राजपथ और आसपास के वातावरण में मिठास घुलता ये है 14 गुरखा ट्रेनिंग सेंटर और 58 गुरखा ट्रेनिंग सेंटर का बैंड। एक और टुकड़ी गुरखा राइफल्स की, ये टुकड़ी 39 गुरखा ट्रेनिंग सेंटर से है। इनके सीनों पर चमचमाते ये पदक प्रमाण है इस बात के कि इन्होंने भारतीय सेना की परंपराओं को हमेशा आगे बढ़ाया है। एक साथ बढ़ते कदम, कंधे तक उठते हाथ, निगाहें सामने, अनुशासन की मूर्ति, अपने फर्ज और सेवा के प्रति सदा जागरूक, राष्ट्रपति को सलामी देते हुए ये जवान हैं आर्मी सर्विस कोर के। इस कोर का गठन 1760 में हुआ था। दूर या नजदीक जहां भी हमारी सेनाएं हैं, आर्मी सर्विस कोर खाद्यान्न और जरूरी चीजें और यातायात की व्यवस्था करता है। संगीत माधुर्य की रस धाराएं प्रवाहित करता ये जो बैंड है वो है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स का और ASC सेंटर नॉर्थ से। और ये जवान हैं प्रादेशिक सेना के, प्रादेशिक सेना की 105वीं इन्फेंट्री बटालियन। इस बटालियन की स्थापना 1922 में की गई थी। इस बटालियन को पश्चिम कमान प्रादेशिक सेना ध्वज और थल सेना अध्यक्ष रजत ट्रॉफी जीतने का गौरव प्राप्त है। Now take a good look at these men. We rarely get to see them. The sentinels of the sea, the naval contingent. The man contingent led by Master Chief Petty Officer N. Singh, consisting of musicians from different naval ships and establishments. Playing the tune, Indian Fleet. Working round the clock, ensuring the territorial integrity of our water, the safety of our offshore installations. Operating on, above, and under the water. Coming down Rajpath now is INS Ranveer, a guided missile destroyer fitted with an electronically computerized detection system for a three-dimensional vigilance against threats emanating from the air, surface, and subsurface. She's also fitted with a 76.2mm medium-range multi-purpose twin-barrel gun, mounting and 4 twin-barrel 30mm rapid-firing anti-submarine rocket launchers. She has a Kamov 25 helicopter for anti-submarine operations. INS Ganga, powerful new guided missile frigate built, designed entirely by the Indian Navy's design organization, carries and operates 2 large Sea King helicopters in the anti-submarine and anti-ship role. INS Mahish, this is an operation model, outlanding operations, landing ship tank capable of landing tanks, trucks and other vehicles and troops on beaches. It's equipped with anti-aircraft guns for self-defense and rocket launchers for softening enemy defenses during amphibious operations. It also shows a tank being unloaded on a beach. The Air Force contingents, the men who guard our airspace, is now approaching the saluting desk. The Air Force band, led by Warrant Officer S.N. Mukherjee, playing the tune Ajit. The youngest service of our armed forces, their legendary feats during 1965, 1971 are memorable. The marching contingent in box formation, 144 airmen, 12 abreast, 12 deep. Squadron leader S.K. Munjal leading the contingent.